नाउ दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ जॉन ब्राउन. आपने इसके पिछले के 2 पेजेस आपने स्टडी किया है, पेज नंबर 18 एंड 19. टुडे आई विल कंटिन्यू फ्रॉम पेज नंबर 20. So John Brown's mother was shocked when she saw her son after he returned from the battlefield because he was completely changed. तो जो जॉन ब्राउन जो था वो हैंडसम, टॉल और ब्रॉड दिख रहा था यूनिफॉर्म में. नाउ ही वॉज कंप्लीटली चेंज्ड. Oh, his face was all shot up and his hand was all blown off. तो अब जॉन ब्राउन की मदर बहुत शॉक्ड हो गई बिकॉज शी नोटिस्ड दैट हर हैंड वॉज ग्रेटली डैमेज्ड. उसका जो हैंड था वो शूटिंग से डैमेज हो गया था एंड इट वॉज टेकन अवे बाय एक्सप्लोजन. जो बॉम्ब्स के एक्सप्लोजन होते हैं बैटल फील्ड में, इट हैड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड द हैंड एंड फेस ऑफ जॉन ब्राउन. एंड ही वोर अ मेटल ब्रेस अराउंड हिज वेस्ट. उसने अपनी वेस्ट पे भी मेटल ब्रेस पहना हुआ था, अदरवाइज ही वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू वॉक और टू स्टैंड प्रॉपरली. तो मेटल ब्रेस इज अ काइंड ऑफ अ मेटेलिक डिवाइस जो आपके बॉडी को सपोर्ट करती है जब आपकी स्पाइनल कॉर्ड डिस्टर्ब हो जाती है. He whispered kind of slow in a voice she did not know. और जो जॉन ब्राउन बहुत हैप्पी होकर के एक्साइटेड टोन में वॉइस में अपनी मदर से बात करता था, नाउ ही वॉज नॉट इन अ कंडीशन टू स्पीक प्रॉपरली, सो ही वॉज स्पीकिंग वेरी स्लोली. While she couldn't even recognize his face, recognize means identify. तो वो अपने फेस को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी, वो अपने सन के फेस को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी. और पोएट ने एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया विच रिफ्लेक्ट्स द फीलिंग ऑफ सैडनेस. सो जॉन ब्राउन्स मदर वॉज एक्सट्रीमली सैड व्हेन शी सॉ हर सन whose face was shot up, his hand was blown off, he was wearing a metal brace, he was speaking very slowly and she could not identify her son's voice. Oh Lord, not even recognize his face. अब the poet is passing a taunt, a satire, कि once the lady who was so happy when John Brown was about to move to another country for fighting against the enemies, she was so excited that she was shouting and telling to everyone. So even mother was unable to recognize the face and voice of her son. Oh, tell me, my darling son, pray tell me what they done. How is it you come to be this way? So when she became extremely sad, she inquired from John Brown, what happened in the battlefield? What has the enemy done? They यहाँ पे enemy के लिए है. And how is it possible that my son, who was having such a tall and good personality, has come to such circumstances, poor stage? He tried his best to talk, but his mouth could hardly move. So John Brown wanted to explain everything to his mother, but because his face was all shot up, so that is why he could hardly speak to his mother. And the mother had to turn her face away. So John Brown's mother became so sad watching her condition that she couldn't see the pathetic side and helplessness of her son. Don't you remember, Ma, when I went off to war, you thought it was the best thing I could do. अब उसने अपनी मदर से पूछा कि when I was wearing the uniform and when I was ready to go to the battlefield, you were feeling so proud about me because you thought that wars were the best thing. So when I could become the soldier was the best thing in my life, कि मैं अगर soldier बन जाऊंगा तो वही मेरी लाइफ का सबसे बड़ा achievement होगा. I was on the battleground, you were home acting proud, you wasn't there standing in my shoes. ये लास्ट लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जॉन ब्राउन ने अपनी मदर को बोला कि जब वो बैटल ग्राउंड में था तब उसकी मदर घर पे थी और वो बहुत प्राउड फील कर रही थी. एंड एक्चुअली शी वॉज नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वॉट सर्कमस्टांसिस, वॉट बैड साइट्स एंड ब्लडशेड एंड डिस्ट्रक्शन, ठीक है, एंड लॉस ऑफ लाइफ वॉज विटनेस्ड बाय हर सन. तो ये जो लास्ट लाइन है इसमें जॉन ब्राउन इज विशिंग दैट हिज मदर शुड ऑल्सो हैव बीन इन हिज प्लेस इन द बैटल फील्ड टू सी द ग्राउंड रियलिटी, टू सी द बिटर ट्रूथ ऑफ द वॉर. ओके. Oh, I thought when I was there, God,
What am I doing here? जॉन ब्राउन बोल रहा है कि when I was fighting in the battlefield, I couldn't understand why was I there and killing other human beings who were also soldiers like me. I'm trying to kill somebody or die trying, but the thing that scared me most was when my enemy came close. उसने बोला कि मैं बैटलफील्ड पे एज अ सोल्जर या तो किसी को मार रहा था और या अपने आप को मरने से बचा रहा था. बात समझ आई? लेकिन जो सबसे डरावना था, the thing which made me most afraid was when my enemy came face to face with me and I saw that his face looked just like mine. So John Brown in a way wanted to convey to his mother that the enemy soldier was also confused like him and that he was also a similar kind of human being who couldn't understand why were they enemies. तो एक सोल्जर जब दूसरे सोल्जर से, एनिमी सोल्जर से जब फाइट करता है, उसको एक्चुअली खुद नहीं पता होता है कि रीजन ऑफ वॉर क्या है. वॉट इज द नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? वाई आर दे हेयर इन द बैटलफील्ड एंड किलिंग ईच अदर? ओके, so this is very unfortunate that you are taking lives of people and you are unaware of the fact that what is the reason of grudge, why the two countries are fighting, why two human beings who God have created to live on this earth are ready to take each other's life. Oh Lord, just like mine. जॉन ब्राउन ने बोला कि तभी उसको रियलाइज हुआ दैट बिकमिंग सोल्जर्स वॉज हिज बिग मिस्टेक एंड वॉर्स कैन नेवर बी गुड, वॉर्स कैन नेवर बी फैंटेसाइज्ड बिकॉज दिस इज द थिंग that you are doing which you are not aware of yourself. So after you become soldier, you are killing another human being for no reason. And I couldn't help but think through the thunder rolling and sting that I was just a puppet in the play. वो बोल रहा है कि एक स्टेज ऐसी आई बैटलफील्ड में when his thoughts stopped, when he couldn't act, when he could not use his brain. ठीक है, and all of a sudden what happened? He was only listening to the thunder rolling, continuous loud sound and foul smell. अब आप ये बताइए कि थंडर रोलिंग तो आपको समझ में आ गया, कैनन्स होती हैं, बुलेट्स होती हैं, बॉम्ब्स होते हैं, बट फोल स्मेल किस चीज़ की होती है? जो डेड बॉडीज होती हैं, जो पड़ी रहती हैं वहाँ बैटलफील्ड पे और वो डीके होने लगती, डिकम्पोज होने लगती, तो उसमें से एक फोल स्मेल निकलती. तो सच इज द पुअर साइट ऑफ बैटलफील्ड दैट आई वॉज जस्ट अ पपेट इन द प्ले. तभी जॉन ब्राउन ने रियलाइज किया कि सोल्जर्स जो होते हैं दे आर यूज टू फाइट फॉर ईगो इशूज एंड लूज इन दिस मैनर, दे लूज देयर प्रेशियस लाइव्स. And through the roar and smoke, this string is finally broke. और जब जॉन ब्राउन इसी थॉट में बिजी था कि उसने क्यों सोल्जरशिप को फॉलो किया, वो क्यों सोल्जर बना, क्यों बैटलफील्ड पे आया, ऑल ऑफ अ सडन देयर वाज अ ह्यूज रोर, एक बड़ा सा लाउड थंडरस साउंड हुआ, स्मोक आया और फाइनली ये जो स्ट्रिंग ऑफ थॉट्स है, ये जो सोचने का उसका कंटिन्यूएशन था, इट ब्रोक एंड अ कैनन बॉल ब्लू माई आईज अवे. कैनन बॉल आप समझे, एक तोप का गोला जो था, इट केम एंड इट डिस्ट्रॉय द आईसाइट ऑफ जॉन ब्राउन. सो ही फेल्ड टू फाइट properly in a loud sound and foul smell because he had now realized that he was a puppet and that he hated war, and that was the time when he was hit by a cannon ball. As he turned to walk, his mama was still in shock at seeing the metal brace that helped him stand. तो जब जैसे ही जॉन ब्राउन जो है वो थोड़ा आगे वॉक करके गया, उसकी मदर अभी भी शॉक्ड थी. वो उसने रियलाइज किया कि वो बहुत बड़ी मिस्टेक पे थी कि उसने अपने सन को क्यों बैटलफील्ड में भेजा. उसने अपने एक गुड पर्सनैलिटी वाले सन को, जिसकी आगे की लाइफ शायद बहुत ब्राइट हो सकती थी, उसका फ्यूचर किसी भी और प्रोफेशन में बहुत अच्छा हो सकता था, वो उसने एक बैटलफील्ड में पार्टिसिपेट करके डिस्ट्रॉय कर दिया. तो वॉर्स कैन नेवर बी फैंटेसाइड, वॉर्स कैन नेवर बी गुड फॉर ह्यूमन बींग्स. और जब उसने मेटल ब्रेस देखा तो उसको लगा कि नाउ द कंडीशन हैज कम टू सच एन एक्सटेंट दैट माई सन विल नॉट बी एबल टू वॉक अनलेस एंड अंटिल ही विल यूज दिस मेटल ब्रेस. बट एज ही टर्न टू गो ही कॉल्ड हिज मदर क्लोज. लेकिन जब जॉन ब्राउन आगे जाने लगा तो उसने अपनी मदर को अपने पास बुलाया, क्योंकि वो बार बार वापस नहीं आ सकता था. ही वॉज वॉकिंग वेरी स्लोली एंड ही ड्रॉप्ड हिज मेडल्स डाउन इन टू हर हैंड.
So all the metals which he had got by his captain, he had thrown these metals into his mother's hand. So the poet thus reflects the anti-war sentiments and is against the idea of romantic attraction of war. और message क्या है poem का? We should not take false pride in anything which proves to be destructive. तो wars जो कि destructive हैं, तो उसमें हमें बिल्कुल भी pride feeling लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वॉर्स जो है वो कितनी भी लेंदी क्यों ना हो, बट दे नेवर ब्रिंग एनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, एंड अदर ह्यूमन वेज कैन बी डिस्कवर्ड टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. तो बातचीत करनी चाहिए, उसी से आप जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो पोएम बहुत ही ब्यूटीफुल है, लैंग्वेज बहुत ईजी है, कैरेक्टर जॉन ब्राउन है, जो टाइटल का भी नेम है वो जस्टिफाइड है. ठीक है, और इसको आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा. दिस वीडियो एंड द प्रीवियस वीडियो विच कंटेन्स द प्रीवियस 2 pages एक्सप्लेनेशन आर बोथ फॉर 11th standard as well as for 12th standard. So the poem can come in 12th standard also and can come, definitely will come in 11th standard. ठीक है, so keep preparing.